Good morning, student. So, topic number 3, reconstitution of partnership firm. So, here reconstitution of partnership firm means admission of a new partner, and so that the change in the relationship among the partners and the form of partnership firm. So, suppose new partner is admitted in the partnership firm, then what? Their ratio will be changed. Old ratio. Suppose two partners are there, then old ratio is there, A and B suppose. And suppose C is admitted, then their sharing ratio will be changed. So here we have to calculate that sacrifice ratio. So ratio which is surrender or given up by the old partners in favor of new partner is called sacrifice ratio. So there is formula also. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. See this, the ratio which is surrender or given up by the old partner in favor of new partner, that is known as sacrifice ratio. So here we have to calculate the sum that A and B, they are the partners sharing profits and losses in the ratio of 6:4. And after that C is admitted in the business as a partner, and new profit sharing ratio of A, B, C are what? 10:6:4. So here we have to find out the sacrifice ratio. So here that partners sacrifice ratio is, old ratio is 6:4. A B का ये old ratio है 6:4. Then new ratio, that C is admitted into the business, then new ratio is 10:6:4. Therefore formula is sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. So अभी A का sacrifice ratio निकालेंगे. Old ratio A का कितना है 6/10, that is 6 plus 4, so 6/10 minus new ratio A का कितना है 10, so 10/20. 10/20 कैसे आ गया? 10 plus 6 16, 16 plus 4 20, so 10/20. तो यहाँ पे 20 एलसीएम है. एलसीएम कैसे निकालेंगे फिर? 10 इंटू 2 20 आता है. सो हियर यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 इंटू 2 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20, सो 2/20. ए का सेक्रीफाइस रेशियो आ गया. नाउ सी हियर बी, सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट बी सेक्रीफाइस रेशियो. बी का ओल्ड रेशियो कितना है 4, सो 4/10. न्यू रेशियो कितना है बी का? ये 6/20 करेंगे. अगेन एलसीएम निकालेंगे. 20 एलसीएम आ गया. सो यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू 2 20. सो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगा 4 इंटू 2 8 माइनस 6/20, सो 2/20 बी का सेक्रीफाइस रेशियो आ गया. So sacrifice ratio of A and B 2/20 as to 2/20 means ratio आ गया 1:1. So this is called as a sacrifice ratio. Then next sum is calculation of sacrifice ratio and new ratio. See here sum is given. Praveen and Naveen, they are the partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3. They admit Reena for 1/5 of share of profit which he takes equally from Praveen and Naveen. See that equally word is important. So calculate their sacrifice ratio and new ratio. अभी यहाँ देखो कि रीना का शेयर दिया है. रीना का कितना शेयर दिया है 1/5. अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? sacrifice ratio of Praveen and Naveen. See here old ratio of Praveen and Naveen का कितना दिया है 7:3 और रीना का रेशियो कितना दिया है 1/5. एंड हियर दैट share of profit which he takes equally from Praveen and Naveen, that Reena takes equally, that she takes equally from Praveen and Naveen, that is 1:1. So here we have to calculate the sacrifice ratio of Praveen and Naveen is 1:1 because equally यहाँ पे दिया है. So Praveen sacrifice ratio निकालेंगे, that is
1/5 किसका है, रीनाज रेशो 1/5 इंटू दिस इक्वल रेशो दिया है सेक्रीफाइस रेशो 1/2, सो आ गया 1/10। सेम वे नवीन का सेक्रीफाइस रेशो करेंगे, सो रीनाज शेयर इंटू दिस सेक्रीफाइस रेशो ऑफ प्रवीण एंड नवीन 1/2, सो आ गया 1/10। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशो का सम क्या, फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। अभी ओल्ड रेशो प्रवीण एंड नवीन का कितना है, 7:3। सो पहले प्रवीण का न्यू रेशो निकालेंगे, 7/10 माइनस 1/10, वे एलसीएम सेम है 10, सो आ गया आंसर 7 - 1 6/10। वैसे ही नवीन का करेंगे, नवीन का ओल्ड रेशो है 3, सो 3/10 माइनस दिस सेक्रीफाइस रेशो 1/10, सो आ गया 2/10। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रवीण का रेशो लिखेंगे, न्यू रेशो 6/10 यहाँ पे आ गया 6/10, फिर नवीन का आ गया 2/10 और रीना का कितना दिया है ऑलरेडी 1/5 दिया है। सो एलसीएम 2 आने के लिए 5 × 2 10, सो 2 × 1 2, सो 6/2/6 2 1/10। सो इनका न्यू रेशो कितना आ गया, 2 से डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 1 एंड हियर 2 3 ज़ा 6, सो 3:1:1, दिस इज द न्यू रेशो ऑफ प्रवीण, नवीन एंड रीना। ओके, सो यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग ने किया न्यू रेशो। देन कम टू द सम नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो एंड न्यू रेशो। यहाँ भी सेक्रीफाइस रेशो भी निकालना है और न्यू रेशो भी निकालना है, सेम फॉर्मूला है। से एक्स एंड वाई दे आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ अगेन 7:3। सी हियर, एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। मतलब उन्होंने न्यू पार्टनर को ये शेयर दिया है, एक्स ने 1/7 दिया है और वाई ने 1/3 दिया है। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। सी हियर, सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किया है दैट एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशो कितना है 7:3, तभी इसका सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। एक्स का सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू 1/7, इसने सरेंडर किया है, ओके यहाँ पे इक्वली किया था, यहाँ पे 1/7 किया है, सो 1/7 इंटू दिस ओल्ड रेशो 7/10, सो क्रॉस हो गया, 7 गया, 1/10 रह गया। फिर वाई सेक्रीफाइस रेशो अगेन कितना सरेंडर किया है, 1/3 किया है, सो 1/3 इंटू 3/10 ओल्ड रेशो ऑफ वाई, सो 3 अपोजिट डायरेक्शन के 3 गए, सो 1/10 रह गया। सो अभी जेड का शेयर्स कैसे निकालेंगे, प्लस करेंगे हम लोग, जेड सेक्रीफाइस रेशो दैट इज एक्स शेयर प्लस वाई शेयर। एक्स का है 1/10 और वाई का है 1/10, मतलब जेड का शेयर्स कितना हो गया 2/10 प्लस किया। उसके बाद न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। सो एक्स का ओल्ड रेशो कितना है 7/10 और सेक्रीफाइस रेशो कितना है, दिस इज 1/10, सो आ गया 6/10। वैसे ही y का न्यू रेशो कितना है 3/10 माइनस 1/10 सेक्रीफाइस रेशो ये, सो आ गया 2/10। सो न्यू रेशो ऑफ x, y एंड z, सो हियर 6/10 x का है 6/10, y का 2/10 है और यहाँ पे z का हम लोग ने प्लस करके निकाला है 2/10। सो अगेन रेशो हो गया, 2 से डिवाइड होता है 1 1 एंड 3, सो 3:1:1। दिस इज द न्यू रेशो एज वेल एज सेक्रीफाइस रेशो. So here we have to calculate. After that, here goodwill is there. So goodwill, that is what? It is an intangible asset. That goodwill means that reputation, fame, image of the business, and it is calculated in terms of what? Money. There are two methods are there. So in this
our syllabus 2 methods are there, that is average profit method and another one is super profit method. So average profit method में हम लोग क्या करेंगे, see here average profit method में प्रॉफिट्स नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहता है. सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो हियर फर्स्ट इज दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट is equal to total profit divided by number of years. After that we have to calculate goodwill, calculation of goodwill. So goodwill is equal to ये average profit आ गया into number of years purchases. So here also sum is there, that calculation of goodwill. यहाँ पे 4 years का profit दिया है. ओके सो ये 2 years प्रॉफिट है, ये लॉस है और अगेन प्रॉफिट है 2016 से लेके 2019 तक. तो अभी टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, प्लस करेंगे 16 का 1,20,000, 2017 का 80,000 प्रॉफिट है और 2018 में लॉस आ गया इसीलिए लेस किया है और 19 में भी प्रॉफिट है 60,000. सो ये पूरा करके ऐड और लेस करके आ गया टोटल प्रॉफिट 2,40,000. So calculation of average profit is equal to total profit upon number of years. So total profit कितना आ गया 2,40,000 और how many number of years 1 2 3 4. So 4 number of years. So average profit आ गया 60,000. So अभी goodwill calculate करेंगे. फॉर्मूला ये है goodwill is equal to average profit into number of years purchases. यहाँ पे दिया है गुडविल इज वैल्यूड एट अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. इन द अबाउ एग्जाम्पल गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर एज 2 years परचेसेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना आया है 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस. सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस कितना है 1,20,000. नंबर ऑफ ईयर परचेसेस 2, सो गुडविल अमाउंट आ गई 1,20,000. देन नेक्स्ट मेथड दैट इज व्हाट सुपर प्रॉफिट मेथड. सो सुपर प्रॉफिट मेथड इज द प्रॉफिट विच इज ऑन ओवर एंड अबाउ नॉर्मल प्रॉफिट. मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑन देन द नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ व्हाट रेपुटेशन स्टेटस ऑफ द बिजनेस. So super profit is the profit which is on over and above the normal profit, and this is what extra profit than the normal profit because of what reputation of the firm. This is also calculated on the basis of capital employed, normal rate of returns here. See in the example here also how many years are there, 5 years are there. Okay, so here capital employed is there, normal rate of returns is there, and goodwill is to be valued at 2 years purchases of super profit. Again here average profit formula is there. Average profit is equal to total profit upon number of years. So here total profit निकालेंगे पहले. फर्स्ट ईयर का 80,000 है, सेकेंड ईयर का 95,000 है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 1,10,000. उसके बाद लॉस है नेक्स्ट ईयर 40,000 लेस हो गया, लॉस है इसलिए, और अगेन प्रॉफिट 85,000. हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स 5. सो डिवाइडेड बाय 5. सो टोटल यहाँ पे आ गया 3,30,000 अपॉन 5. सो एवरेज प्रॉफिट आ गया 66,000. फिर हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of returns divided by number of years. So यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,50,000 एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेसेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो हियर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है 3,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स कितना दिया है 12%. ओके एंड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स. सो 12% यहाँ पे किया, सो आ गया 42,000. ओके सो 42,000 नंबर ऑफ ईयर्स ऑलरेडी यहाँ पे किया है. सो सुपर
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे. सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो 66,000 माइनस 42,000, सो आ गया 24,000. अभी नंबर ऑफ ईयर्स वैल्यूड एट 2 years परचेसेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो लास्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट आ गया 24,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस 2. सो आ गया 48,000. सो दिस इज व्हाट सुपर प्रॉफिट मेथड. सो this super profit method, here we have to remember this formula that average profit is equal to total profit upon number of years. उसके बाद हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट प्रिपेयर करेंगे. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. सो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. देन goodwill, so goodwill is equal to super profit into number of years purchases. So this sum is important, all these sums, and that is helpful for what, solving the questions of admission of partners.